जाएगा और somebody will be there who wants to learn more about मतलब यही class. Everything was taught to us, and I'm so very happy. My inner confidence has come up in a better way. I can really walk on the road, and I can face the world now. And thank you so much, Akshay ji. Thank you so much, Aditya, that you have taken this initiative. And thanks to Mehul sir and Megha sir, Megha ma'am. This is very good initiative for everybody. And I'd like to take this platform to inform everybody here, everybody who's standing here, to take this out to as many women as possible, because everybody needs it. Every woman at this point in time needs it. It's a need of the hour. So take this way in whatever way you can do. Facebook, WhatsApp, everything possible. Just go out and inform everybody about it. Thank you so much. Thank you. Say, I have opened this I'll be honest about it, that I was actually, when I opened it, I had to go for my holiday, because and I just landed about 7 days back, and I have come here and met them for the first time, and today actually being their graduation day, so I thought this was a perfect time to call the whole media and let them know about it, what it is all about. Obviously, from the next batch onwards, I will be coming whenever I'm here on Saturday, Sundays. These girls are going to be training. इनमें से कोई होगा जो advanced classes में भी जाएगा, और somebody will be there who wants to learn more about मतलब यही class वापस सीखना चाहेंगे. Let me tell you, there were about 60 girls who were there, and out of that 30 of them have been selected, and you can see 30 of them who are going to be graduating today. And graduation doesn't mean that they know everything. They have to still learn a lot, and that's it. So that is a different training. That is something got to do with knife and more on the Russian side of training. But this is more practical. That tells you about how to carry a weapon. And here I'm telling you, you cannot carry a weapon all the time. You have to use, आप street पे अगर कोई पत्थर देखते हो, that has to become your weapon. हाथ में कीचेन है, that has to become a weapon. Every girl has been given एक सीटी दी गई है. That can be your weapon. So it's a call, that is the difference between that training and this training. But एक मिनट. जी, मैंने एक क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया ही था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने पूरा एडिटोरियल पढ़ा है खुद ने, या न्यूज़ के ट्वीट्स पढ़े? नहीं, पूरा एडिटोरियल पढ़ा है, पूरा एडिटोरियल पढ़ा है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा एडिटोरियल पढ़े, फिर बात करते हैं हम. उसमें एक चीज़ तो आपने देखी होगी, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा कि आप पूरा एडिटोरियल पढ़े, क्योंकि एक मैंने आज अब भी ट्वीट किया आते आते कि अगर आप पूरा एडिटोरियल पढ़े तो उसमें जो लास्ट लाइन है फर्स्ट पैराग्राफ में, वो यही है कि कोणाची बाजू घेण्याची गोष्ट नहीं है, यानी कि किसी को डिफेंड करने की बात नहीं है. लेकिन जब रेप केसेस होते हैं और रेप एक्यूजेशंस होते हैं, तब ये जो एक्यूजेशंस होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल के बारे में हो तो काफ़ी फैमिलीज उसमें ब्रोकन हो जाती है. पब्लिक फिगर्स हो, जैसे राहुल गांधी पे एक्यूजेशन हुआ था, वो बाद में एक्विट हुए, लेकिन 3 साल तक उन पे चलते गए डेफेमेशन की, रेप अक्यूज्ड है. अभी जो राज्यसभा के वाइस चेयरमैन है पीजे कुरियन, उन पे भी एक्यूजेशन हुआ, वो भी एक्विट हुए, लेकिन काफ़ी हंगामा हुआ. एक डीआईजी पे अब भी हुआ है, और मुझे लगता है एक इंस्पेक्टर थे बुर्डे करके, तो उन्होंने जब सुसाइड किया उसके बाद पता चला कि वो गिल्टी नहीं है. तो ये जो केसेस होते हैं ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं. तो बात उसमें ये है, अभी डीआईजी को उनका फोटो ऊपर दिया, इसलिए आप कह रहे हैं उनको डिफेंड करें, उनका फोटो नहीं होता तो यही एडिटोरियल. तो एक मिनट मेरी बात पूरी सुनिए. तो एडिटोरियल में यही कहा गया है कि किसी को भी मीडिया ने रेपिस्ट कहने से पहले कोर्ट का वर्डिक्ट आने दो. जो भी बात है, ट्रूथ है, रिपोर्टिंग होना चाहिए, लेकिन किसी को डेफेमेटरी लाइट में दिखाना गलत है. किसी को वर्डिक्ट आने के पहले मीडिया ट्रायल पे चढ़ाना गलत है. अगर रेपिस्ट हो, गिल्टी हो, फांसी पे लटकाओ, कोई डिफेंड नहीं करेगा. यही उसमें बात है. और इसलिए हम कहते हैं, जो ये अभी हम सेल्फ डिफेंस क्लासेस करें, युवा सेना भी जब निर्भया रेप केस हुआ उसके बाद मुंबई में युवा सेना ने हेल्पलाइन चलाई, दिल्ली से ज़्यादा बेहतर हेल्पलाइन चली.
जो भी कोई गिल्टी था, पुलिस में कंप्लेंट की, हमने कहीं जाके फेसबुक पे या कहीं पे कहा नहीं हमने इसको पकड़ा या कुछ, या ये गिल्टी है, ये अक्यूज्ड है, इसने ये छेड़खानी की है, पुलिस इसका जो भी हल है वो निकालेगी।